افواج پاکستان کے کڑیل بہادر جوانوں کی بہادری کی بدولت، ہماری ایئر فورس شاہینوں کی شاندار کارکردگی کی بدولت 4 دن کے اندر ہندوستان کی فوج وہ گھٹنوں کے بل گری۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو زندہ دار تھپڑ رسید کیا۔ 4 روزہ جنگ کے بعد بھارتی فوج گھٹنوں پر آ گئی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں مسلح افواج نے دشمن کو تاریخی سبق سکھایا۔ امریکی کانگریس کی رپورٹ نے پاکستان کی کامیابی پر مہر ثبت کر دی۔ پاکستان کو جو عزت ملی یہ ہمارے بہادر جوانوں اور شاہینوں کی بہترین کارکردگی کی بدولت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا آزاد کشمیر کے شہر باغ میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ The Prime Minister of Pakistan called me. Thank you very much. He actually said I saved millions, and he said it in front of Susie. He said, President Trump saved millions and millions of lives. He doesn't even know that, but he saved millions of lives, and he talks about it. And I got a call from Prime Minister Modi saying, we're done. I said, you're done with what? We're not going to go to war. I said, thank you very much. Let's make a deal. پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ مداخلت کر کے جنگ بند کرا دی۔ دونوں ملکوں کی قیادت کو کہا کہ جنگ کریں گے تو 350% ٹیرف لگا دوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ رکوانے پر کال کر کے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچا لی۔ مودی نے بھی کال کر کے پاکستان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ امن کے لیے تاریخی کام کر رہا ہوں، تنازعات کے حل کا ماہر ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ سعودی بزنس فورم سے خطاب۔ دبئی ایئر شو میں پاکستان نے بھارت کو 4 شانے چت کر دیا۔ پاکستان کی شان ملٹی رول لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر کا سٹال دبئی ایئر شو میں مرکز نگاہ بن گیا۔ جدید ترین لڑاکا طیارے کی کاشش نے بھارتی فوج کے اہلکاروں کو بھی اپنی جانب کھینچ لیا۔ بھارتی ایئر فورس اور بحریہ کے آفیسر اور اہلکار دبئی ایئر شو میں JF-17 تھنڈر کے سامنے کھڑے ہو کر یادگاری تصاویر بناتے رہے۔ بھارتی فوجی اہلکاروں کی پاکستانی پیویلین کے دوروں کی تصاویر سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئیں۔ پاکستانی پیویلین کا دورہ کرنے پر بھارتی سوشل میڈیا صارفین اپنی حکومت اور فوج پر برس پڑے۔ دبئی ایئر شو میں مختلف ملکوں کا JF-17 تھنڈر کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار۔ ایک دوست ملک کے ساتھ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے کی خریداری سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے دودھ دبئی ایئر شو میں موجود دوست ملکوں کے فضائی سربراہوں سے ملاقاتیں۔ متحدہ عرب امارات کے انڈر سیکریٹری دفاع اور کمانڈر ایئر فورس اینڈ ایئر ڈیفنس کی ملاقاتیں۔ تربیت کے شعبوں میں تعاون کے فروغ، آپریشنل ہم آہنگی کے نظام کو مزید بہتر کرنے پر بات چیت۔ اماراتی عسکری قیادت نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ معاشی میدان میں دن رات محنت کر رہے ہیں۔ نہ صرف ریاست بلکہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ خوشحالی کا دورہ ہوگا۔ جناب وزیر اعظم، آپ گورننس کا وہ معیار بنائیں جس کا مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بنائیں گے، تاکہ پورے آزاد کشمیر میں اس کی خوشبو پہنچے۔ عسکری اور جنگی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے بعد معاشی میدان میں بھی پاکستان کی فتوحات کا دائرہ بڑھایا جائے گا۔ معاشی میدان میں بھی کامیابی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر گورننس کا مثالی معیار قائم کریں، عوام کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں، آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے عوام کو ان کا حق ضرور ملے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ میرا یہ ایمان ہے کہ یہاں پر ریاست کے بچے اور بچیاں ان دانش اسکولوں سے فارغ التحصیل ہو کر نہ صرف ریاست میں بلکہ پاکستان میں اپنا نام اجاگر کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے انشاءاللہ۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाग के इलाके हाड़ी गहल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। दानिश स्कूल पाकिस्तान के नामवर तालीमी इदारों के हम पल्ला। पूरे पाकिस्तान में दानिश गाहें दिन रात तामीर और तरक्की के जरिए फैल रही हैं। गरीबों के बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं। दानिश स्कूल से फारिग तहसील आम घरानों के तलबा और तालिबात इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनकर मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। दानिश स्कूलों का दायरा कार वादी नीलम तक फैला दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का फॉरवर्ड कहूटा में भी दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। PIA की निजकारी और बिजनेस प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग। निजकारी के बाद PIA का नाम और इसके थीम नहीं बदला जाएगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए 4 पार्टीज को प्री क्वालिफाई किया गया है। 75% शेयर्स की निजकारी के लिए बिडिंग जल्द होगी। वज़ीर आज़म की निजकारी के तमाम मराहिल तेज रफ्तारी और शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत। PIA में तैयारों की तादाद बढ़ाने के लिए लाहे अमल तरतीब दिया जाए। परवाजों की बर वक्त रवानगी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 5 कामयाब कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला कुरब में खुफिया इतलात पर 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 23 खारजी दहशतगर्द मारे गए। मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, लकी मरवत में 2 और टांक में 1 दहशतगर्द जहन्नुम रसीद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के आज़म का यादा। The TTP, with its approximately 6,000 fighters, is another serious threat emanating from the region, receiving both logistical and substantial support from the de facto authorities. The TTP has conducted numerous high-profile attacks in Pakistan from Afghan soil, some of which incurred mass casualties. कालादम TTP के हमले पाकिस्तान के शहरियों के लिए बड़ा खतरा। कालादम TTP के 6000 जंगजू अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम से माली और लॉजिस्टिक मदद हासिल है। आलमी बरादरी दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ सख्त इकदाम करे। दहशतगर्दों को किसी किस्म की मदद फराहम नहीं की जानी चाहिए। न्यूयॉर्क में सरबराह सलामती काउंसिल कमेटी सांड्रा जेंसन लेंडी की दहशतगर्द ग्रोहों पर पाबंदी से मुतालिक ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे की ब्रसल्स में मुलाकात। पाकिस्तान नेटो बाहमी ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और अहम इलाकाई और आलमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए आलमी क़वानीन और माहिदों की पासदारी यकीनी बनाना जरूरी है। पाकिस्तान जनूबी एशिया को पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल बनाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म। पंजाब ने पहली बार 120 अरब रुपए की खतीर बचत का संगे मील उबूर कर लिया। पंजाब में तरक्की की नई राहें खोलने के लिए थल एक्सप्रेसवे मंसूबा शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की सदारत में तमाम महकमों की कारकर्दगी का 6 घंटे तवील जायजा इजलास। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज ने मंसूबों पर आदाद शुमार, टाइमलाइन और नताइज पेश किए। मरियम नवाज के अवामी खिदमत के अहदाफ पूरे करने पर टीम पंजाब को शाबाश। वज़रा और इंतजामिया के ताउन के बगैर अहदाफ का हुसूल नामुमकिन था। वज़ीर आला मरियम नवाज। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ से श्रीलंका के नायब वज़ीर खेल की मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़, खेलों में बाहमी ताउन और दो तरफा रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों का खेलों के शोबे में इश्तिराक को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तिफाक। पाकिस्तान खित्ते में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा इक़दाम कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हवेलियां जलसे में धमकी आमेज बयान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिला इंतजामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाने का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब कल इलेक्शन कमीशन तलब। NA 18 हरीपुर में पोलिंग के रोज फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला और वजारत दफा को खत लिख दिया। वज़ीर आला के जारहाना बयानात सरकारी अफसरान के काम में रुकावट बन सकते हैं। पोलिंग स्टेशंस पर मुकम्मल अमन व अमान यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन।
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا اسلام آباد میں پاک بحریہ ہیڈ کوارٹرز کا الوداعی دورہ، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پاک بحریہ کی جنگی تیاریوں کو سراہا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے تینوں مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی خدمات کو سراہا۔ معرکہ حق پر امریکی کمیشن کی رپورٹ سے بھارت کا حقائق کے منافی پروپیگنڈا بے نقاب، گودی میڈیا رپورٹ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے لگا۔ رپورٹ میں بھارت کی شکست کا اعتراف مودی حکومت کے لیے سبکی کا باعث بن گیا۔ شواہد، رپورٹس اور عالمی میڈیا معرکہ حق پر پاکستانی موقف کو سچ ثابت کر رہا ہے۔ امریکہ اور چین اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن رپورٹ میں پاکستان کی فتح پر مہر ثبت۔ افغان طالبان رجیم نے ملک کو عالمی تنہائی میں دھکیل دیا۔ دنیا کے بیشتر ملکوں کا افغانستان پر مکمل عدم اعتماد۔ عالمی برادری افغان طالبان رجیم کو عالمی فورمز میں بلانے سے گریزاں۔ ایس سی او سربراہ اجلاس میں افغانستان کو ایک بار پھر مدعو نہیں کیا گیا۔ افغان جریدہ طلوع نیوز۔ ٹرانزٹ کوریڈور کی اہمیت کے باوجود اجلاس میں شریک نہیں کیا گیا ماہر اقتصادی امور۔ جھوٹ اور فریب کے ماہر بھارتی میڈیا نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے ایک بار پھر گودی میڈیا کے جھوٹے دعووں اور پروپیگنڈا مہم کا پردہ فاش کر دیا۔ جھوٹ گھڑنے کے ماہر گودی میڈیا نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے تقریر کے الفاظ کا غلط ترجمہ کر کے عوام کو گمراہ کیا۔ تقریر سے کچھ اقتباسات ویڈیو کی شکل میں اٹھا کر مفہوم تبدیل کرنے کی مذموم کوشش کی۔ تقریر سے اخذ کیے گئے جملے کا دلی دھماکے سے کوئی تعلق نہیں، وزارت اطلاعات و نشریات۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ بھارتی جبر کا سب سے زیادہ شکار بچے ہیں۔ گزشتہ 37 برس میں 936 بچوں کو شہید کیا گیا۔ 1989 سے جاری بھارتی کارروائیوں میں 1,08,007 بچے یتیم ہو چکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے بچوں اور خواتین سمیت 79 کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی شدید مذمت۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں پائیدار امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، حریت قیادت۔ معروف ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض کو ہم سے بچھڑے 41 برس بیت گئے۔ علم و ادب کے شعبے میں ان کا فیض آج بھی جاری۔ ان کے ادبی مجموعوں کا انگلش، فارسی، روسی، جرمن اور دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ فیض احمد فیض بر اعظم ایشیا کے واحد شاعر ہیں جنہیں روس کی جانب سے لینن امن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ Runner Makman Yoagbati has been dropped right to the rear of the field. Nadeem lets fly into the Riyadh night sky. Oh, that's big. That's very big. The first, can he go even longer? قوم کا سرفخر سے بلند اسلامی یکجہتی گیمز کے جیولن تھرو میں پاکستان کے 2 تمغے۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب۔ بہترین تھرو 83.05 میٹر رہی۔ 2021 میں بھی ارشد ندیم نے اسلامی یکجہتی گیمز میں گولڈ میڈل جیتا۔ پاکستان کے محمد یاسر چاندی کا تمغہ اپنے نام کرنے میں کامیاب۔ محمد یاسر کی بہترین تھرو 76.04 میٹر رہی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے کھلاڑیوں اور کوچز کو مبارکباد۔ Oh, hits it over the top. Beautifully played. Boom! Straight through. Oh, that's traveled. That's gone. راولپنڈی میں 3 ملکی T20 سیریز کا دوسرا میچ زمبابوے کا سری لنکا کو 163 رنز کا ہدف۔ 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 162 رنز بنائے۔ برائن بینٹ کے 49 اور سکندر رضا کے 47 رنز۔ وانندو ہزارنگا کی 3 اور ایشن ملنگا کی 2 وکٹیں۔ جواب میں سری لنکا کی بیٹنگ مشکلات کا شکار۔ 84 رنز پر 8 کھلاڑی آؤٹ۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔
कोलंबो में ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने अपने आखिरी लीग मैच में अमेरिका को 9 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 95 रन का हदफ 8.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। सेमीफाइनल्स का 22 नवंबर से आगाज। पहला सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला नेपाल से होगा। और कैरिबियन के छोटे से जजीरे कोरासाओ ने तारीख रकम कर दी। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। 1,56,000 आबादी वाले मुल्क कोरासाओ में जश्न का समा। कोरासाओ अगले साल फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान को दिफाई मैदान की तरह माशी मैदान में भी मजबूत बनाने के लिए मसरूफ़े अमल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फॉरवर्ड कोहूटा में भी दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान किया। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। हम सितारों से आगे चले, हम सितारों से आगे चले, आगे चले। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि दानिश स्कूल आला तालीम के जदीद इदारों के हमपल्ला तालीमी मयार के हामिल हैं। दानिश दरसगाहों से तालीम हासिल करने वाले वसाइल से महरूम होने हार तालिबे इल्म मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। ये वो दानिश गाहें हैं जिनका मुकाबला पाकिस्तान में आप चाहे एचएन कॉलेज से कर लें, लॉरेंस कॉलेज से कर लें या बर्न हॉल एबटाबाद से कर लें। इसीलिए दानिश स्कूल की बुनियाद रखी गई कि जो हज़रत कायद आज़म का और अल्लामा इकबाल का जो विजन था कि ऐसा पाकिस्तान जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेहनत, अमानत और दयानत की बुनियाद पर हर बच्चे और बच्ची को तरक्की का मौका मिलेगा, वो रास्ते बदकिस्मती से मौजूद नहीं थे। दानिशगाहों ने वो रास्ते खोल दिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अपनी पेशा वराना महारत से दुश्मन को सबक सिखाया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान की कामयाबी पर मोहर सब्त कर दी। 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान की अफवाज ने वाकई। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। ये क्या था? ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शानदार क़यादत, अफवाज की दलेरी, पाकिस्तान को जो फतूहात मिली। इसी तरीके से हम माशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरक्की के लिए रियासत की हुकूमत को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। जो पाकिस्तान की कमेटी और आज़ाद कश्मीर की जो कमेटी थी, उनके दरमियान जो फैसले हुए उसके ऊपर इंशाअल्लाह पूरी तरह हम कमिटेड हैं, उनके ऊपर अमल पैरा होंगे। और मैं जनाब वज़ीर आज़म राठौर साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आप गवर्नेंस का वो मेयार बनाएं जिसका मुझे पूरा यकीन है कि आप बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर की तरह मकबूजा जम्मू और कश्मीर को भी आज़ादी चाहिए और उसके लिए पाकिस्तान हर लिहाज से सफारती, इखलाकी भरपूर तावन आज तक किया और करता रहेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैर मकदम करते हुए कहा कि शहबाज स्पीड पर अमल करते हुए आज़ाद कश्मीर में भी तरक्याती अमल को आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अमीर मुकाम और चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद ने अपने खिताब में कहा कि 15 साल कबल दानिश स्कूल का रहीम यार खान से शुरू होने वाले सफर का दायराकार पूरे मुल्क तक फैल गया है। आवाम की समाजी और मौशी तरक्की के मंसूबे हकीकत का रूप धार रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाग के इलाके पहाड़ी गहल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्हें मंसूबे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इस मंसूबे को आइंदा साल 23 मार्च तक मुकम्मल किया जाए। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से तमाम मराहिल तेज रफ्तारी और शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के उमूर पर इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने PIA की फ्लीट में काबिल परवाज तैयारों की तादाद बढ़ाने के लिए लाहे अमल तरतीब देने और PIA की परवाज़ों की बरवक्त रवानगी यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास को PIA की निजकारी और इस हवाले से बिजनेस प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि PIA की निजकारी के हवाले से 4 पार्टीज को प्री क्वालिफाई किया गया है। जल्द ही PIA की निजकारी के हवाले से बिडिंग होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि PIA के 75% शेयर्स की निजकारी होगी। निजकारी के हवाले से ये शर्त रखी गई कि निजकारी के बाद PIA का नाम और उसकी थीम नहीं बदली जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि बिजनेस प्लान के तहत 2029 में PIA फ्लीट में काबिल परवाज तैयारों की तादाद 18 से बढ़ाकर 38 की जाएगी। इस वक्त कौमी एयरलाइन 30 से ज़ायद शहरों में सर्विस मुहैया कर रही है। बिजनेस प्लान के तहत 2029 तक PIA की सर्विसेज को 40 से ज़ायद शहरों तक बढ़ा दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां करके भारतीय हिमायती याफ्ता 30 खारजी दहशतगर्द जहन्नम हासिल कर दिए हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला कुर्रम में खुफिया इत्तलात पर किए जाने वाले 2 ऑपरेशंस में 23 खारजी दहशतगर्द हलाक किए। मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। लकी मरवत में 2 और टांक में 1 दहशतगर्द को जहन्नम रसीद कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला खैबर पख्तूनख्वा में फितना खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से हाउसिंग एंड वर्क्स के वफाकी वज़ीर रियाज हुसैन पीरज़ादा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वफाकी वज़ारत हाउसिंग से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल के वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ारत से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने नेटो हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से मुलाकात की और खित्ते की सूरत हाल समेत अहम इलाकाई और आलमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इलाकाई सूरत हाल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के साथ बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदों की पासदारी यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया को पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल बनाने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और नेटो के माबैन बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से भी मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के उमूर दाखिला और माइग्रेशन के कमिश्नर के साथ मुलाकात की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन में हुनरमंद लेबर की कानूनी नकल मकानी आसान बनाने और उनको मुनज़्ज़म करने के लिए डायलॉग फ्रेमवर्क की अफादियत पर रोशनी डाली। मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान यूरो मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। अफ्रीका ने पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन टैलेंट पार्टनरशिप रोड मैप के जरिए गैर कानूनी हिजरत रोकने और कानूनी रास्ते फ़ाल बनाने की हिमायत और मुआवनत का इयादा किया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के अहम अरकान से इशाइये पर मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में आलमी और इलाकाई उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब ने अपनी हालिया तारीख में पहली बार 120 अरब रुपए की खतीर बचत का संगे मील उबूर कर लिया है। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में तारीख साज तरक्की, साफ पानी, रोजगार, रिहाइश, सड़कें और जदीद सनत के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब की ज़मीन पर तरक्की की नई राहें खोलने के लिए थल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है। इजलास में बताया गया कि सूबे भर में मजमूई तौर पर 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों की तामीर और मरम्मत मुकम्मल हो गई, जबकि 100 साल तक चलने वाली खुसूसी प्लास्टिक सीवरेज लाइन का तारीखी मंसूबा शुरू किया जा रहा है। इजलास में सरकारी अस्पतालों के लिए 100 वेंटिलेटर्स खरीदने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जून के आखिर तक घरों में पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने और नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत भी की। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि खुसूसी अफराद मुआशरे का रोशन चेहरा हैं। ये अफराद मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्तान में खुसूसी अफराद में व्हील चेयर तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि व्हील चेयर प्रोग्राम माजूर अफराद के लिए जिंदगी बदल देने वाला मनसूबा है। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में माजूर अफराद को व्हील चेयर्स, खुराक और दीगर इमदादी सामान फराहम किया गया, जबकि जनूबी पंजाब की खवातीन को हुनरमंदी की तरबियत देकर माशी तौर पर बाइख्तियार बनाया जा रहा है। कायम मकाम सदर ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने लाखों खवातीन को शनाख्त, माली तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनाया और आज ये खवातीन अपने खानदानों की किफ़ालत कर रही हैं। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस की खदमात को सराहते हुए खुसूसी अफराद में व्हील चेयर्स भी तकसीम की। वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारर से श्रीलंका के नायब वज़ीर उमूर नौजवानानो खेल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में क्रिकेट के फ़रोग़ और दो तरफ़ा रवाबित पर तबादला ख्याल किया और खेलों के शोबे में इश्तिराकी अमल को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात एतमाद, एहतराम और मुश्तरका अक़दार पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा इक़दाम कर रहा है। वज़ीर इत्तलात ने खेलों में ताउन के फ़रोग़ पर श्रीलंका की हुकूमत और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। श्रीलंकन वफ़द ने ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतज़ामात, मेज़बानी और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के फ़रोग़ के अज़्म को सराहा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी और बख्तावर भुट्टो ज़रदारी ने अबूज़बी में मकामी और आलमी इदारों की जानिब से शहजादी शेखा फातिमा को मिलने वाली यादगारी शील्ड्स और एजाज़ात का मुशाहिदा किया। शेखा फातिमा को ये एजाज़ात इंसानियत दोस्त इक़दामात, फलाही कामों और इमारात की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए की गई खदमात के एतराफ़ में दिए गए। आसिफा भुट्टो ज़रदारी और बख्तावर भुट्टो ज़रदारी ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, तालीम और क़यादत के फ़रोग़ के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की काविशों को सराहते हुए जर्नल विमेंस यूनियंस की विजिटर्स बुक पर भी दस्तखत किए। आसिफा भुट्टो ज़रदारी और बख्तावर भुट्टो ज़रदारी ने अमाराती ख़वातीन की कामयाबियों और मदर ऑफ द नेशन विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव पर मुश्तमिल मालूमाती वीडियो भी देखी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हवेलिया में जलसे के दौरान दिए गए बयानात का सख्त नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और इंतखाबी उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को इलेक्शन एक्ट 2017 और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कल तलब करते हुए बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जलसे में आवाम को उकसाते हुए ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन अमले को धमकाया। इस रवैये की वजह से NA-18 हरीपुर में पुरअमन ज़िम्ने इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म दिया है कि वो इस सिलसिले में फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी और IG से मीटिंग करें और ज़रूरी हिफाज़ती इक़दाम करने के बाद अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करें। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि पुरअमन इंतखाबी अमल में खलल डालने की किसी भी कोशिश पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हल्का NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब में फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मामला। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी वजारत दिफा को 23 नवंबर को NA-18 के पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल अमन अमान यकीनी बनाने के हवाले से खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर से खौफ का माहौल पैदा हुआ, इसलिए इंतखाबी अमले, वोटर्स और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के रोज़ के लिए फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज की भी तैनाती मांग ली ताकि पोलिंग स्टाफ, वोटर्स और आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का दौरा किया। वज़ीर ख़जाना को वर्चुअल एसेट के लिए पाकिस्तान के पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तैयारी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
वज़ीर ख़ज़ाना ने अथॉरिटी की पेशरफ्त, मुशावरती अमल और रेगुलेटरी गाइडलाइंस की तैयारी को सराहा और बरवक्त अमल दरामद की हिदायत की। इजलास के शुरका ने वर्चुअल एसेट के शोबे में शफाफ, महफूज और आलमी मेयार के मुताबिक रेगुलेटरी निज़ाम की तश्कील के अज़्म का अयादा किया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने एक बार फिर अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के इनकलाबी सफ़र को शेख सुर्खियों का मरकज़ बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी सरमायाकारों के मुल्की क़यादत के माशी विजन पर भरपूर एतमाद का मजहर है। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम, शफाफियत और मालियाती नज़्म व ज़ब्त से सरमायाकारों के एतमाद में बेहद इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के छोटे सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट में 40% इजाफा किया। 2025 में 100 इंडेक्स में 40% इजाफा पाकिस्तान को एशिया की बेहतरीन मार्केट के तौर पर जाहिर करता है। पाकिस्तानी मईशत 2023 में दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच चुकी थी, मगर अब बेहतरी के आसार ने सरमायाकारों में नया जोश व जज्बा पैदा किया है। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ सितंबर की सहमाही में 36,000 नए ट्रेडिंग अकाउंट्स खोले गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में माह अक्टूबर में रोजाना ट्रेडिंग का हजम $200 मिलियन तक पहुंचा, जो 2017 के बाद सबसे ज्यादा है। स्वीडिश कंपनी टेंड्रा फाउंडर्स एबी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेट्सास मार्टसन के मुताबिक पाकिस्तान अब माशी इस्तेहकाम के दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान में कंपनियों ने मालियाती नज़्म ज़ब्त बेहतर किया। स्टेट बैंक की पॉलिसियों में भी शफाफियत आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 710 पॉइंट्स के इजाफे से 1,62,936 पर बंद हुआ। रिपोर्ट करेंगे ज़मीर अब्बास। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने जो इक्तिसादी हिकमत अमली अपनाई, इसके नताइज हासिल होना शुरू हो गए हैं। न सिर्फ मुल्क के मुआशी आशारी मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की इन कोशिशों को सराहा जा रहा है। हुकूमत की कोशिशों की वजह से मुल्क में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बढ़ना खुशाइंद है। 2025 में कैपिटल मार्केट में 40% इजाफा देखा गया है और रवा माली साल की पहली सहमाही में 36,000 नए ट्रेडिंग अकाउंट्स खोले गए हैं, जो कि सरमायाकारों का मुल्क की मुआशी पॉलिसीज पर एतमाद का मजहर है और यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी देखने में आ रही है। LSM का जो डेटा आया है वो भी बहुत ही शानदार आया है। 4.1% इजाफा हुआ है 4 मंथ में। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि 13% जो है बैंक डिपॉजिट में इजाफा हुआ है और 33,000 अरब से जो है वो तजाविज़ कर गया है। और इसके साथ साथ रिपीटेशन का जो फिगर्स हैं 143% इस पर भी इजाफा हुआ है। तो और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में मजीद IMF के हवाले से और इंटरेस्ट रेट के हवाले से अच्छी खबरें आएंगी, तो मार्केट में जो है मजीद नई रैली बन सकती है। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 473 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 247 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 187 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 39 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज बाजार हिस्सेस में 35 अरब 31 करोड़ रुपए की लागत के 3,32,000 सौदे हुए, जिसमें 72 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, सीमेंट, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। दुबई एयर शो में पाकिस्तान की आन और शान JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की खरीदारी में मुख्तलिफ मुल्कों ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक दुबई एयर शो में एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की खरीदारी से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी हुए हैं। पाक फजाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान दुबई एयर शो में भी शिरकत की। सरबराह पाक फजाइया ने मुत्तहिदा अरब अमारात की अस्करी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें दोनों मुल्कों की फजाइया के दरमियान तरबियत के शोबों में ताउन के फरोग, ऑपरेशनल हम आहंगी के निज़ाम को मजीद बेहतर करने पर बातचीत हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात की अस्करी क़यादत ने पाक फजाइया की पेशावराना सलाहियतों को सराहा और मुस्तकबिल की अस्करी शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के आज़म का भी इजहार किया। एयर चीफ मार्शल ने दीगर दोस्त ममालिक की फजाइया के सरबराहान से भी मुलाकातें की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इस्लामाबाद में पाक बहरिया हेडक्वार्टर्स का अलविदाई दौरा किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने जंगी तैयारियों को सराहा और मुल्क की बहरी सरहदों की हिफाजत के लिए पाक बहरिया के पुख्ता अज़्म की तारीफ की। नेवल चीफ ने कहा कि तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अस्करी खिदमात को सराहा। इससे कबल पाक बहरिया हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को सलामी दी।
वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत पर यकीन रखती है और अपने कारकुनों को कदर की निगाह से देखती है। कोटली आज़ाद कश्मीर में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरहूम राजा नसीर अहमद की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वजीर ने मार्का हक में भारत को भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। मैं इसी मौके पर अफवाज पाकिस्तान को भी जिन्होंने जिस तरह आप सबका फख्र, हम सबका सर फख्र से बुलंद कर दिया और मारे गए हक में साबित कर दिया, क्या अपने आप से 10 गुना बड़े दुश्मन को जिस तरह शिकस्त दे दी, तो उनको भी हम सलाम पेश करते, उनके जज्बे को जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में और लीडरशिप में, और ये यकीन दिलाया इस LOC के तरफ इस तरफ रहने वालों को भी और उसी तरफ भी कि पाकिस्तान ये सलाहियत रखता है अपने दिफा का भी, और इंशाअल्लाह ताला वही जो हमारे बहने भाई है उनकी भी जरूर मुनासिब जो भी आता है वही उनका मदद करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर के जिला मुजफ्फराबाद के हल्का कोटला में सैकड़ों अफराद मुख्तलिफ जमातों को खैरबाद कहकर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। तफसीर बता रहे हैं अदील अहमद खान। मुजफ्फराबाद के नौही इलाके शहीद गली में मुनक्कदा शमूलियती जलसे से खिताब के दौरान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर ने मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून भरपूर अवामी हमायत से आमदा इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग को हर हल्के में कामयाबी देनी है इंशाअल्लाह, और कामयाब करना है इंशाअल्लाह, ताकि एक मजबूत हुकूमत कायम हो। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान रिश्तों को कमजोर करने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा तलब पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते, पाकिस्तान हमें नहीं छोड़ सकता। बड़ी साजिशें की गई कि किसी तरह से कश्मीरी को दिल में पाकिस्तान से दूरी पैदा की जाए या पाकिस्तान के लोगों से कश्मीरी से दूरी पैदा की जाए, लेकिन जब तक मुस्लिम लीग मौजूद है, उसके एक कारकुन मौजूद है, ये साजिश कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल नहीं होने देंगे। इस मौके पर खिताब के दौरान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की मरकजी रहनुमा बेगम नूरीन अरफ और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवामी जमात है और आमदा इलेक्शन में माजी की तरह शानदार कामयाबियां समेटेगी। इस मौके पर हल्का कोटला से सैकड़ों अफराद मुख्तलिफ जमातें छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, जिन्हें पार्टी क़यादत की जानब से फूलों के हार पहनाए गए। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानब से बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें मौजूद गाड़ियों को पार्टी परचमों और बैनर से आरास्ता किया गया था। इस मौके पर कारकुनान ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे फलक शगाफ नारे लगाए। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। भारतीय मीडिया की मनगढ़ंत खबरों का भांडा एक बार फिर फूट गया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने भारतीय मीडिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश करने पर गोदी मीडिया के झूठे दावों का पर्दाफाश कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने आज़ाद कश्मीर असेंबली से खिताब के दौरान भारत के बलोचिस्तान में दहशतगर्द प्रॉक्सीज को सख्त और मौसर जवाब देने की पॉलिसी का हवाला दिया। भारतीय गोदी मीडिया ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इस बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश करते हुए झूठे दावे में कहा कि चौधरी अनवारुल हक ने एतराफ कर लिया कि हालिया दिल्ली धमाके की मंसूबाबंदी पाकिस्तान ने की थी। वजारत इत्तलात के मुताबिक हकीकत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीर से अखज़ किए गए जुमले का दिल्ली धमाके से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में मार्का हक और भारत में किसी हालिया वाक़े का कोई हवाला नहीं दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की मुसलसल कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता 37 साल में 936 बच्चों को शहीद किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से बच्चों के आलमी दिन के मौके पर जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि इलाके में भारत के गैर कानूनी कब्जे और फौजी जबर का सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये 936 बच्चे उन 96,480 कश्मीरी शोधा में शामिल हैं जो भारतीय फोर्सेज ने 1 जनवरी 1989 से अब तक शहीद किए हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इन शहादतों के नतीजे में 1,08,007 बच्चे यतीम हो चुके हैं। कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में बच्चों और खवातीन समेत निहत्ते कश्मीरियों पर जारी भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के आलमी तंजीमों पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत पर दबाव डालें। नई दिल्ली के ज़ेरे कंट्रोल तहकीकाती इदारे स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू में मारूफ अंग्रेज़ी अखबार कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापा मारा है।
SIA نے اخبار کے ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بسین کے خلاف مقدمہ درج بھی کیا۔ انورادھا بسین بھارتی حکومت کی کشمیر دشمن پالیسیز کی سخت ناقد ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت ایٹمی ہتھیاروں سے ایک دوسرے پر حملہ کرنے والے تھے، تاہم میں نے مداخلت کر کے جنگ بندی کرا دی۔ امریکہ سعودیہ بزنس فورم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت سے کہا آپ جنگ کریں گے تو 350% ٹیرف لگا دوں گا۔ The Prime Minister of Pakistan called me. Thank you very much. He actually said I saved millions, and he said it in front of Susie. He said, President Trump saved millions and millions of lives. He doesn't even know that, but he saved millions of lives, and he talks about it. And I got a call from Prime Minister Modi saying, we're done. I said, you're done with what? We're not going to go to war. I said, thank you very much. Let's make a deal. امریکی صدر نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم مودی نے بھی مجھے کال کر کے کہا کہ میں جنگ روکنے پر تیار ہوں، پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ رکوانے پر کال کر کے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے لاکھوں افراد کی زندگیاں بچائی ہیں۔ مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی کی یاد میں تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ عرفان صدیقی مرحوم کی سیاسی جدوجہد کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے۔ تفصیل بتائیں گے فہد جاوید۔ مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی کی یاد میں اسلام آباد میں ہونے والے تعزیتی ریفرنس سے اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عرفان صدیقی اعلیٰ پائے کے صحافی اور زیرک سیاستدان تھے۔ انہوں نے قومی سطح پر قانون سازی میں اہم کردار ادا کیا۔ کہ وہ حلقہ 11 میں تو ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن جب سیاست اور اصول کی بات ہوتی تھی تو ان کی مضبوطی چٹان کی طرح تھی۔ خیال میں یہی وہ وصف ہے اور یہی وہ یاد ہے جو ہمیشہ ہم سب کے ذہنوں میں کندہ رہے گی کہ عرفان صاحب نے ایک گرم ترین سیاسی ماحول میں معاملات کو بڑی جچی تلی گفتگو کے ساتھ ٹھنڈا رکھنے کا ان کو ملکہ حاصل تھا۔ وہ چاہے سینٹ کا فلو ہو، کوئی ٹی وی کا ٹاک شو ہو یا سینٹ کی لابی میں ان کی گفتگو ہے۔ وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ مرحوم عرفان صدیقی نے اصولوں اور وفاداری کی سیاست کی۔ وہ بہترین استاد کے ساتھ شاندار انسان بھی تھے۔ سیاست میں بھی جتنی زیادہ میں نے دیکھا کہ ان کی زندگی کے اندر شفقت، دوسروں کے ساتھ ایک محبت، ریسپیکٹ، احترام، پیشنس، گائیڈنس، یہ تمام وہ کوالٹیز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہ تمام کسی ایک شخص میں اگر میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں تو وہ پروفیسر عرفان صدیقی صاحب ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر پرویز رشید نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم عرفان صدیقی نے ملکی سیاست میں اپنا نام پیدا کیا۔ ان کے ساتھ آشنائی کالج دور سے تھی۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم الفاظ کے ہنر سے آشنا تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مختلف مکاتب فکر اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کہا کہ عرفان صدیقی منطق اور عقل و فہم کے ساتھ معاملات کا حل نکالتے تھے۔ ان کی معاشرے کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مقامی حکومت کو مضبوط کرنے پر متفق ہیں۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خوشحالی کا مطلب 25 کروڑ عوام کی خوشحالی ہے۔ پوری دنیا میں مقامی سطح پر حکمرانی جمہوریت کے تیسرے حصے کے مضبوط ہونے سے ہوتی ہے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ جمہوریت کے ثمرات عوام تک پہنچانے کا واحد راستہ مقامی حکومتوں کا نظام ہے۔ منصوبہ بندی و ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان جس نظریے پر قائم ہوا تھا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے حوالے سے تقریب سے خطاب انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے قوم کو بیدار کیا۔ اقبال کے افکار پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ نصاب میں اقبال کے فلسفے کو شامل کریں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا میری مقدم نے کہا کہ علامہ اقبال پاکستان اور ایران کے درمیان دوستی کی علامت ہیں۔ بنگلہ دیش کے سفیر محمد اقبال حسین نے کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری بنگلہ دیش میں بھی بہت پڑھی جاتی ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے سینٹرل ایشیا ریجنل اکنامک کوآپریشن وزارتی کانفرنس میں شرکت کی جو ایشیائی ترقیاتی بینک کی میزبانی میں بشکیک میں ہوئی۔
वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान कैरिक 2030 के वस्त मुद्दती जायज़े को अमली इक़दाम में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट, डिजिटलाइजेशन और तजारत के शोबों में वज़ा करदा कवानीन पर अमल दरामद का खैर मकदम करते हैं। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा भी पाकिस्तानी वफ्द के साथ कॉन्फ्रेंस में शरीक थीं। 1998 के पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दो तरफा सरमायाकारी मुआहदे की जदीदकारी के सिलसिले में इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकराती दौर के इख्तिताम पर दोनों वफूद ने मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत किए। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख ने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी से मुतल्लिक पॉलिसी इस्लाहात के नए दौर में दाखिल हो रहा है, जिसका मकसद शफाफियत, सरमायाकारों का एतमाद और आलमी शराकतदारों के साथ तवील मुद्दती माशी ताउन को फ़रोग़ देना है। सेहत के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा का दौरा किया। डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत ने NGO के इश्तराक से गुर्दा वार्ड में मरीजों को डायलिसिस की सहूलियात की फराहमी को सराहा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ममलिकत का कहना था कि हुकूमत अवाम को सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने कहा है कि PTI हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम रही है। हरीपुर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज खान की इंतखाबी मुहिम के दौरान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हर शोबा तबाही का शिकार है। सूबाई हुकूमत किसी मसले पर तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ही सूबे के अवाम के मसाइल हल कर सकती है और अवाम को मसाइल की दलदल से निकाल सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि रियासत तय कर चुकी है कि दहशत गर्दी करने वाला किसी भी अकीदे या मुल्क से हो वो पाकिस्तान का दुश्मन है। लाहौर में उलमा और मशाइख कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारी सरहदों की महाफिज हैं। तमाम पाकिस्तानी अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की वालदा साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। कौमी असम्बली के हल्के 127 के अवाम की बड़ी तादाद ने कचहरी में शिरकत की और अपने मसाइल बयान किए। सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक ने अवामी मसाइल सुने और उनकी मुश्किलात के अजाले के लिए फौरी अहकामात जारी किए। साजिदा फारूक तारड़ ने कहा कि शहरियों के मसाइल का फौरी और शफाफ हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि खुली कचहरी अवामी मुश्किलात के अजाले के साथ साथ अवाम और क़यादत के दरमियान बराह रास्त राब्ते का मजबूत जरिया है। इस मौके पर शहरियों ने गैस, बिजली, सीवरेज, माली इमदाद और दीगर बुनियादी मसाइल से मुतालिक दरख्वास्तें पेश की। साजिदा फारूक तारड़ ने शहरियों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। शहरियों ने खुली कचहरी के इनेकाद, मसाइल के फौरी हल और पार्टी क़यादत से बराह रास्त राब्ते का मौका मिलने पर इत्मीनान का इजहार किया। सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने अवामी मसाइल के हल के लिए फ़ाल किरदार अदा करने और खुली कचहरी के तमाम इंतजामी अमूर की भरपूर निगरानी करने पर टीम मेंबर असद अबरार के किरदार को सराहा। इस मौके पर PSO शहबाज तालिब, PSO राना वकास, मलिक AD, ख़वातीन कोऑर्डिनेटर किशोर बाजवा, सादिया नाज और रमज़ा मलिक भी मौजूद थे। हुकूमत के डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत PTV ड्रामा एंड फिल्म अकेडमी इस्लामाबाद में मसनूई ज़हानत के मौसर इस्तेमाल से मुतालिक तरबियती सेशन हुआ। तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद उस्मान। मीडिया में जिद्दत और नए तकाज़ों से हम आंग होने के लिए मीडिया प्रोफेशनल्स की AI टूल्स के बेहतर इस्तेमाल से मुतालिक आगाही नागुज़ीर है। इसी मकसद के तहत PTV अकेडमी में AI टूल से मुतालिक तरबियती प्रोग्राम के चौथे सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें रिपोर्टर्स, प्रोड्यूसर और रिसर्चर्स को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए अमली तरबियत फराहम की गई। AI से 40% जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाता है, 20% कॉस्ट एस्टिमेशन रिड्यूस हो जाती है, ओवरऑल सिनेरियो पूरा ऑप्टिमाइज हो जाता है और आसानी पैदा हो जाती है। शुरका को खबर की तहकीक, एडिटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मसनूई ज़हानत के मौसर इस्तेमाल से मुतालिक आगाही फराहम की गई। हमें बताया गया कि जो एक रिपोर्टर है या एक प्रोड्यूसर है वो किस तरह AI का टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतर कर सकते। AI का इस्तेमाल इमर्जिंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हो रहा है। बेसिक से लेकर थोड़ा इंटरमीडिएट तक हमें चीज़ों को समझाया गया है। आज की जो ट्रेनिंग थी AI के हवाले से वो नहायत ही फ्रूटफुल थी। PTV अकेडमी जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियती सेशन का इनेकाद करता है ताकि मुलाजमीन बेहतर अंदाज में अपने प्रोफेशनल अमूर अंजाम दे सकें। जितने भी हमारे कोर्स हुए हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा हुआ है हमारे साथियों को। जो भी हमारे नई जिद्दत आ रही है, दुनिया जिस डगर पर चल रही है, हम भी कोशिश करें कि अपने एम्प्लॉइज़ को उसी तरह की फैसिलिटीज़ दें। आज का जो सेशन था कि किस तरह से हम लोग जो है इन टूल्स को इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोर्स के इख्तिताम पर जनरल मैनेजर PTV अकेडमी संगीन जलाल और कंट्रोलर जायद हुसैन जतोई ने शुरका में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। ऐसे तरबियती प्रोग्राम न सिर्फ अदारे के लिए सूदमंद साबित होंगे बल्कि अफरादी कुव्वत अपने पेशावराना जिम्मेदारियों को आलमी मेयार के मुताबिक अंजाम दे सकेंगे। AI इस्तेमाल से पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में जिद्दत के दरवाजे मजीद वसी होंगे। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
बताना ये चाहता हूँ, और खास तौर पे जो हमारी ख्वातीन वर्कर्स हैं, कि जब आप मेहनत करते हैं तो उसका सिला मुस्लिम लीग नवाज देती है। मुस्लिम लीग नवाज अपने वर्करों को नहीं भूलती है। यासर नंबरदार साहब के नीचे हमको स्टेज पे तशरीफ लाए। यासर नंबरदार को स्टेज पे भेजे और जितनी देर में आ रहे हैं पंजाब की वो ख्वातीन जिनका 12 बजे तक टाइम नहीं था, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ मिलके उनकी आवाज बनी। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्मोक, जबकि चंद मकामात पर हल्की धुंध पड़ने की तवक्को है। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 मुल्की T20 सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त दे दी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। जिम्बाब्वे ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 162 रन बनाए। ओपनर ब्रायन बेनेट ने 49 और सिकंदर रजा ने 47 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका की जानिब से वरिंदो हसारंगा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। डेब्यू करने वाले एशन मलिंगा ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जवाब में श्रीलंका की टीम जिम्बाब्वे के बॉलर्स के एतमाद से खेल न सकी और 20 ओवर्स में 95 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान दासिन चनाका 34 रन के साथ नुमायां बल्लेबाज रहे। श्रीलंका के 9 बल्लेबाज सिंगल फिगर तक महदूद रहे। जिम्बाब्वे की जानिब से ब्राइड एवंस ने 3 विकेटें हासिल की। रिचर्ड नगारावा के हिस्से में 2 विकेटें आई। सिकंदर रजा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कौम का सर फख्र से बुलंद। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का एक और एजाज। इस्लामी यकजहती गेम्स की जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर भी चांदी का तमगा जीतने में कामयाब रहे। तफसील जानते हैं ज़ीशान क़य्यूम से। He is the favourite, 92 metres and 97 centimetres as his personal best, season best of 86.4. रियाज में होने वाले इवेंट में अरशद नदीम इब्तदा से ही छाए रहे। पहली थ्रो उन्होंने 75.44 मीटर करके पहली ही पोजीशन हासिल कर ली। दूसरी बारी में अरशद नदीम ने 83.05 मीटर दूर नेजा फेंका, जो उनके लिए गोल्ड मेडल का बाइस बना। तीसरी थ्रो अरशद नदीम ने 82.48 मीटर की। चौथी बारी में उन्होंने 77.06 मीटर दूर नेजा फेंका, जबकि पांचवी बारी अरशद नदीम की जाया गई। अरशद नदीम की छठी अटेम्प्ट 77.98 मीटर तवील रही। 2021 में भी अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स में सोने का तमगा जीता था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अलग अलग बड़ा शुक्र है कि मैं इंजरी के बाद दोबारा जो है वर्ल्ड इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में असला हिस्सा लिया और आज पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैंने कम बैक किया है इंजरी के बाद। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कंपटीशन है 2026 में, उसके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूंगा। पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर ने भी मुल्क का नाम खूब रोशन किया। उन्होंने अपनी छठी बारी में 76.04 मीटर दूर नेजा फेंका और चांदी का तमगा हासिल किया। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा यहाँ पे जो हमारी सऊदी अरब में कम्युनिटी है, तमाम पाकिस्तान को, कि इस कामयाबी के ऊपर हमारे दोनों एथलीट्स ने मुल्क का नाम रोशन किया है और ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है। नाइजीरिया के सैम्यूल एडम्स क्योर ने 76.01 मीटर की थ्रो के साथ कांसी का तमगा अपने नाम किया। जेवलिन थ्रो में मर्दों का दिलचस्प फाइनल PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। ज़ीशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए PTV न्यूज।